శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద కోరుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోత్సవించుకున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోహ దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే
वेङ्कटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాదీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பில் நாச்சிமார்களையும் சேவித்துக் கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. நாச்சிமார்களை சேவிக்கலாம். ஆடி மாதம் 22வது நாள், ஆடிப்பூரம், விசேஷமான நன்னாள், ஆண்டாளுடைய திருநக்ஷத்திரம். இந்த ஆடிப்பூரத்தன்றுதான் அவள் திருத்துழாய் வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்டு பெரியாழ்வாரால் வளர்க்கப்பட்டு ஆண்டாள் கோதை என்று அழைக்கப்பட்டவள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாளுடைய திருநக்ஷத்திரமான இன்றெல்லாம் இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே அவளை ஸ்மரணை செய்து கொண்டு கல்யாண உற்சவத்தை செவிக்கலாம். பக்தர்களே வாருங்கள், ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் என்று சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வசனத்தை சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அந்த மலையப்ப சுவாமியினுடைய அனபாயினிகளை சேவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா 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 என்று ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஆண்டாளை சேவிக்கலாம். அங்கே சென்று நாம் சேவிப்பதாக மனதார நினைத்து கொண்டு இப்பொழுது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்தை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிப்போம். சேனா முதலி என்பவர் எந்தவித தடங்கல்களையும் இல்லாமல் விஷ்ணு கைங்கரியங்களிலே உதவியாக நின்று அனைத்து கைங்கரியங்களும் வெற்றி பெற செய்பவர். அப்படிப்பட்டவருக்கு முதலில் விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வசனத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணியா வசனம் கலசாராதனையை செய்வார். திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா 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 என்று சேவிக்கலாம். அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் SVBC தொலைக்காட்சி மூலம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களை கோவிந்த நாமங்களை கூறிக்கொண்டு
அமைதியாக மனதிலே அந்த பகவானை ஸ்மரணை செய்து கொண்டு இப்பொழுது அந்த கல்யாண உற்சவத்தை செவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. மாதவா கேசவா மதுசூதனா என்று அந்த சஹஸ்ர நாமங்களிலே அனைத்து நாமங்களையும் சேவித்து கூறி அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறலாம். கோவர்தனகிரிதாரி சப்தகிரிவாசா மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்பது மதுரை அருகிலே சுமார் 80 கிலோமீட்டர் தொலைவு தூரத்திலே உள்ளது. திராவிட கலை உபயோகித்து கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலானது திவ்ய பிரபந்த பாடல்களால் பாடப்பெற்ற தலம் இது. 6லிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டில் வரை ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்த தலம். இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுதி புண்ணியாவாஜன ஓம் மதோ தேவாஹ வந்தனதா விஷ்ணுர்ஜக்ரமே पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेतो वृतानि वसुते इन्द्रस्य जशकाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्यप्रासोय वन्यवाजार्ध्रुवागं दस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा शिरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवदेशन्ना द्रविणोधाराः स्थितिर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करोतोपविशम् यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्योगच्छेति यतधिन्यं पश्येति तावत् गुरुदत्कार्ये स्यात् पुण्याः विवृते ओं भूः अथ विरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नाश्रोत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं स पुण्याभाजनं पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोक्तस्वास्तिनः पुषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिः ददातु ओं भूवत् विरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नाश्रोत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं स पुण्याभाजनं स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येनं सद्यां तृन्देवं तद्धेन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषावध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूवत् विरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नाश्रोत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं स पुण्याचनकर्मी रुद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्ठामयोपस्थानोर्जेदादनां हेरणाय चक्षे योपस्विदमारस्तस्य भार्येदेन उषतीरिव मात्रः तस्मार्गमावो शिक्ष्याय जन्मधः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायः जातः कच्छभाजः सुन्दरः अग्नियागर्भन्धद्रैवरोपास्थानः प्रसिद्धस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शिनिः यः पोदासो नातुमा पनन्तु मादेव जनाः पनन्तु मनवोधिया पनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतकुम्भरणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेशाः तेन सहस्रधारेण पामान्यः पनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्तावरणसमीक्षाः यमराजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषजं शन्नो हस्तद्पदेः शञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तिरमाद्यन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरामाद्यन्तां प्रदीक्षान् दिशग्रहाः पशुवामाद्यन्तां उदीहीत्यां दिशा भोषधयो वनस्पतिमाद्यन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्तां उदोदराद्रे नागेभ्यो माद्यन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि यस्मान् स्वाविश्वानिमे भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शस्यनेदुपदे शञ्चदस्पदे वास्तवास्पदे शक्मया सुसदाते शक्तिमे शरण्या गातमत्याः आवक्ष्यमुदयगे वरण्णो यूयं पादस्तभिः सदानः
अवयवः वास्तवास्पदे विश्वारूपाण्याविषन्ने सखा सेवेदनः अनोरणीयान् महतां हीयानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तः तमः कदम्बस्वेदशोको धातुप्रदारान् महिमानिमिषं सप्तः प्राणा प्रवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समिद सप्त विश्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त वरुणान्मा सक्षनान्मा पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मा सक्षनान्मा यथा भासा गुडापारणि निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च नमो भगवते वासुदेवाय கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்வதற்காக மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் திருத்துழாய் சேர்த்து பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த அங்குரார்ப்பண வேளையிலே பகவானையும் நாச்சிமார்களையும் செவிக்கலாம். ஆண்டாளுடைய திருநக்ஷத்திரமாகையால் அவளை பற்றி ஏராளமான விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவ சமயத்திலே 6லிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை ஆழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் செய்த தலம் 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று. வடபத்திர சாயியை திருமணம் செய்து கொள்ள வந்த லக்ஷ்மி ஆண்டாள் உருவத்திலே அவதரித்தவள். பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகளாக அவதரித்தவள். ஆனியில் ஆழ்வாரின் உற்சவம், ஆடிப்பூரம், புரட்டாசி எண்ணெய் காப்பு, பங்குனியில் திருக்கல்யாண உற்சவம், இப்படியாக வரிசையாக இவளுக்கு விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இங்கு 3 கோயில்களிலே வடபத்திரசாயி, ஆண்டாள், பெரியாழ்வார்களுக்கு 3 கோவில்கள். ஆண்டாள் திருத்துழாய் வரத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்டவள் பெரியாழ்வாரால். ஆண்டாள் மாலா கைங்கரியத்திலே தகப்பனாருக்கு உதவி புரிபவள். தினமும் மாலையை தொடுத்து முதலில் தான் அணிந்து அதன் பிறகு பெருமாளுக்கு அனுப்புவாள். இது தெரியாத பெரியாழ்வார் ஒரு நாள் பார்த்து கடிந்து கொண்டாராம். அப்படி தினந்தோறும் அந்த புஷ்பங்களை கொய்து வந்து பறித்து மாலையாக கட்டி தன்னுடைய தலையிலே சூடிக்கொண்டு கழுத்திலே அணிந்து கொண்டு அதன் பிறகு பகவானுக்கு அனுப்புவாள். இப்படித்தான் தினந்தோறும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எம்பெருமானும் அமைதியாக உள்ளார். ஏனென்றால் அவளிடத்தில் அதிக பாசமும் பற்றும் காதலும் கொண்டவர். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் சமர்ப்பித்த மாலைதான் தனக்கு வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர். இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாக உள்ளது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். அந்த ரக்ஷைகளிலே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு முறையே அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்கிறார். அந்த கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். प्रतिसर देवता पूजां च करिष्ये। ओम षण्णो धत्तां दुसर्जप्तां स्वयंभरग्रें तें दाया नागराजमावाहयामि साशेषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि। प्रतिसर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमध्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरि ओम। स्वस्ति नः वेदामश्विना भग स्वस्ति देवेदनर्वणः स्वस्य पूषां सुरोदादनः स्वस्तिद्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सों स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसरग्निः स्वस्तेः देवाः मन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इति कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता संगमे महि स्वस्ते नन्दार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्दसो नाम वारुहेम अं हों च माङ्गिरसञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा दाक्षं
प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். அதேபோல் இங்கே இன்று ஆண்டாளுடைய திருநக்ஷத்திரம் ஆகையால் அவள் கூட பக்தர்களை காப்பவள்தான். ஆகவே அவளையும் சற்று நினைவு கூர்ந்து இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். பெருமாள் அவரது கனவில் வந்து அதே மாலை தான் வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டாராம் எம்பெருமான். ஆண்டாள் தென்மேற்கு பகுதியில் குடிகொண்டுள்ளாள். வடகிழக்கு பகுதியில் வடபத்திரசாயியின் கோவில். விஜயநகர அரசர் மற்றும் நாயக்கர்கள் இந்த கோவிலை வண்ணங்கள் தீட்டி வரைகோலங்களை இட்டு புதுப்பித்தார்களாம். 2016 சம்பிரோக்ஷணம் நடைபெற்றது என்றும் தமிழக அரசின் தலைமையில் மார்க்கண்டேயர் பிருகு மகர்ஷிகளை குருவாக சேவிப்பார்கள் பெரியாழ்வார். அப்படி தென்கலை இங்கே வடகலை தென்கலை என்று இங்கே கைங்கரியங்கள் நடைபெறுகிறது. ஒரு நாளைக்கு 6 கைங்கரியங்கள் வீதம் நடைபெறுகிறது. வருடத்திற்கு 3 விழாக்கள். ஆண்டாள் அவதரித்த நாள் ஆடிப்பூரம். ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதத்திலே இந்துக்களால் இந்த கோவிலை, அதாவது இந்த ஆடிப்பூரமானது இந்த மாதத்திலே வருகிறது. அதேபோல் இந்த கோவிலை இந்துக்கள் பராமரித்து வருகிறார்கள் என்றும் 108 திவ்ய தேசங்களிலே ஒன்று, 12 ஆழ்வார்களில் ஒருவர் தான் இந்த ஆண்டாள். இந்த ஆண்டாளுடைய க்ஷேத்திரமானது வராக க்ஷேத்திரம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அடர்ந்த காடுகள் அதிகம். வராக க்ஷேத்திரத்திலே ஆண்டாள் கொலுவிட்டிருக்கிறாள். எங்கே என்றால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே. வடபத்திர சாய்க்குத்தான் அந்த மாலையை தொடுத்து 2 பகுதிகளாக அவள் அனுப்புவாளாம். குரு பரம்பரையிலே இங்கே சேவிக்கப்படுகிறது. அந்த கோபுரமானது 11 நிலைகள், 11 கலசங்கள், 196 அடி உயரத்திலே கோபுரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2 பகுதிகளாக உள்ளது ஆண்டாள் சந்நிதி. ஆக இந்த கோவிலானது 15வது நூற்றாண்டிலே திருப்பணிகள் செய்தனர் மதுரை பாண்டியர்களும் நாயக்கர்களும். இவ்வாறாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோவிலிலே எழுந்தருளிருக்கும் ஆண்டாளுடைய திருநக்ஷத்திரத்திலே நாம் இத்தனையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது இங்கே திருமலை அப்பனுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. 7 கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா வைகுந்த வாசா வெங்கடரமணா ஆபத் பாந்தவா அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை செவிக்கலாம். அடுத்து நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு கைங்கரியங்கள் செய்வர், அதாவது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினைமுற்றவும் தாங்கள் தங்களுக்கு நல்லனவே செய்வேர் என்கிறார் திருவாய்மொழியில் பாசுரத்தில். கடம் என்பது கடன் என்றபடி. அப்படி திரிபிருணைர்வா ஜாயத்தே என்கிறது வேத வாக்கியத்தின்படியே பிராமணன் 3 வகையான கடன்களுடன் பிறக்கிறான். பிரம்மச்சரியேன ருஷிபியா, யக்னேன தேவேபியா, பிரஜாய பித்ருபியா என்று மேலும் வேதம் ஓதியபடி வேதாத்தியனத்தால் ரிஷிகளின் கடன்களையும் யக்னங்களால் தேவர்களின் கடன்களையும் சந்தான உற்பத்தியினால் பித்ருக்களின் கடனையும் தீர்க்கிறான். அந்த கடன்களெல்லாம் வேங்கட மாமலை அடைவதற்காகவே தீர்க்கப்பட்டனவாகும் என்று பாசுரத்திற்கு பொருள். திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்வினை ஓய்மே என்பது நம்மாழ்வாரின் அருளிச் செயல். மலை ஒன்றுமே போதும், அதில் எழுந்தருளி இருக்கின்ற எம்பெருமான் கூட வேண்டியதில்லை. அதுவே நமது பாபங்களையும் மோட்சம் அடைய தடையாக உள்ள அனைத்தையும் போக்கும் என்றபடி
என்றபடி சென்று வணங்குமினோ சேனுயிர் வெங்கடத்தை என் நின்று வினை கெடுக்கும் நீர்மையால் என்று திருமழிசை ஆழ்வாரும் அருளிச் செய்துள்ளார். நித்திய சூரிகள் உண்மையான பக்தியுடனே ஆசிரயிப்பதும் திருமலையே. அனுபவியாமல் அழியாத பாபங்களையும் உடம்பை பற்றிய நோய்களையும் போக்கடிக்க வல்லதும் திருமலையே என்றபடி முதல் திருவந்தாதியிலே பொய்கையாழ்வார் பாசுரத்திலே எழுவார் விடை கொள்வார் ஈந்துழாயானை வழுவா வகை நினைந்து வை கல் தொழுவார் வினை சுடரை நந்துவிக்கும் வேங்கடமே வானோர் மனச்சுடரை தூண்டும் மலை வேங்கடமலை என்று விழிக்கிறார். தாங்கள் விரும்பிய ஐஸ்வர்யம் கிடைத்தவுடனே எம்பெருமானை கைவிட்டு எழுந்து போவார்கள் ஐஸ்வர்யார்த்திகள். அங்கனேயே தாங்கள் வேண்டுகின்ற கைவல்யம் கைப்பட்டதும் விடை கொள்வார். எம்பெருமானை திரும்பி பார்க்காமல் விடை பெற்று கொண்டு போவார்கள் கைவல்யார்த்திகள் என்று இப்படியாக விழிக்கிறார்கள். ஆக அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமியும் தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். இறுதியிலே லாஜஹோமம், பிரதான் ஹோமம், அஞ்சனமிடுதலும் பூர்ணாகூத்தியுடன் அந்த ஹோமத்தை முடிப்பார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்த. ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷி ஓம் யதோன்விந்திரம் ஸ்வாஹம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु इंद्र शुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरुतिभिः मयि देवाद्रेणमयजन्तामय्यातिरश्मिरेभूति देव्या होतारमहन्त पूर्वेरिष्टास्यां तन्वासुवीराः मह्ये जन्तव्यान् हव्याकूति सत्यां सौम्यस्तु येन मानिगाहं कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं यजमानस्सन्तु शिवानः सन्त परिदश्यस्य सन्ना माता पृथिवी तोगसाता जातवेद भुवनश्रेते हिंसदुसर्जनश्यतेः अग्निमश्रद्धादेव्यवागं शमीगर्भार्जनेन्व्योमि जातवेदः देवेभ्यो अव्यमनप्रजानन्ने आयुप्रजागमरेमस्माभिदेश सरोदेदि अनोद्रोणे अज्ञायाः विदेशो वेदाति निहतास्य वृषि ऐतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देहदप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मसाध्वीमस्त्रजा वेनावः बुद्ध्या सृष्टा सस्यान्मातस्व ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमार्वन्तमा सोमो वीरं कर्मणि दातु साधन्यं थिकं सभेयं पितृश्रवणं मेधा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्येतन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञमयजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्येतन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञमयजमांसदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त अग्नेः स्त वायुभूतेस्त विष्णोर्मनसा भूतेश्च पवित्रं च पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त वैज्ञेः स्त वायुभूतेस्त विष्णोर्मनसा भूतेस्त अग्नेस्त भावनेस्तः परसर पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देव सवितपसपनात् छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती विष्णवे नमः विष्णोस्तुपसि लक्ष्मणता विष्णोस्तुपसि पश्चिमस्वधत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुपसि श्रुतासि घृतासि द्रवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्येतन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञमयजमांसदेहि ओम प्रणय रामापः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्येतन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञमयजमांसदेहि ओम प्रणय सौ वः प्रणेतु सौ वः प्रणेत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षप्रद ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयं अग्निमावाहयं सोममावाहयं अग्निमावाहयं सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयं सोनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृशा ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वर्णमावाहयं ऐत्यानावाहयं अश्विनामावाहयं पुषाणमावाहयामि कक्षमावाहयं कक्ष सोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि
आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नपामि इन्द्रायष्ठन्नपामग्नेष्ठन्नपामि सोमायष्ठन्नपाग्नेष्ठन्नपामि सोमायष्ठन्नपामि अग्निसोमाहाभ्यान्यष्ठन्नपामि प्रजापतिष्ठन्नपामि ब्रह्मणेष्ठन्नपामि इन्द्रायष्ठन्नपामि वसुभ्यष्ठन्नपामि रुद्रष्ठन्नपामि रुद्रेभ्यष्ठन्नपामि भवपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्ठन्नपामि मित्राष्ठन्नपामि वरुणाष्ठन्नपामि आदित्येभ्यष्ठन्नपामि शुभ्याष्ठन्नपामि पूष्णेष्ठन्नपामि कक्षाष्ठन्नपामि कक्षदे सोमाष्ठन्नपामि उपासनयज्ञाष्ठन्नपामि देवेभ्यो ष्ठन्नपामि आद्यन्त्रिप्रतिश्राम शरन्त्रिप्रतिश्राम ज्ञाज्योत्समित स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्तर्दमक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्वेस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वे स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वे स्वाहा देवस्वा सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वे स्वाहा मूलाग्राभ्याङ्गस्पर्शेत्वा अध्यक्ष अक्षतार्जर्भिर्मामे ज्ञेष्ठगाधेन सन्ते एकाच शतञ्च सहस्रञ्च मध्यन्तापराध क्षेमामे ज्ञेष्ठगाधेन सन्तु षष्ठशतसहस्रान्नितमक्षयमर्भदमान्य अयन्ति आत्मा जातवेदस्तेनेद्धस्तवद्यजयस्मान् प्रियापृषब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् अवभासनाड्यून्ये ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नेत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाहाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्याम ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा अवभासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा एतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवहूतः प्रासावीः ओं भूवतिवरक्षायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वमन्त्रवीर्यातनात् प्रायस्थातम् अतो देवाय वैष्णवं होष्ये एतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवहूतः प्रसवः ओं मतो देवाहन्तरदो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्लेतोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा एतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवहूतः प्रासावीः చూడరే ఓ కరి కోకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి కోకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి కోకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు
కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో తడవి సింహ మధ్యయు నునగూడే తడవి సింహ మధ్యయు నునగూడే సమస్త వేదార్థ విజయ విఘ్నసే నమః శృతి స్మృతి నిధి పూర్ణం శాస్త్రగల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోన్నవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరివిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలధస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకార महदव्यक्ताक्षसप्तावृणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह गुर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तल अतल सप्तपादाक्ष सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्र फणामणिमण्डल मंडिते ऐरावत पुंडरीक वामन कुमरांजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्ट दिग्दंड सुंडादंडोत्तंबिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिंधवती गंधवत्तिलकावती यशोवती इत्यष्टदेव विराजिते इंद्राग्नि यमनिरुते वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोक बालिक परिपालिते लोकालोक जलवलयिते लवणेक्षुसरा सर्पित क्षीर शुद्धोदगाख्य सत्तार्णवपरिवृते जंबू प्लक्षकुचक्रंच सागरान्मणि पुष्कराकाख्य तप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सहदृष्टमदृष्टमद्विन्द्यपर्याक्राख्य सप्तकुल पर्वत विराजिते
भारत किंपुर्यहारी रावृतभद्राश्रकेतु कमालकर्मण कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्ष्यार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामासङ्गातव कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तरेश्वरिमण्डपर्यन्तं कुतराशीर्वर्ष सहस्रावसानैकैकतिलापग्रहणक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीनियुताग्निष्ठामत्राप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधपोक्षमसिद्धर्थं परव्यूह अन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपरुणमयी भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादियुक्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गला पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्रे आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशम्नः पौत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवाहन और्वैदल पंचार्षे प्रदानित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्म्यां भुवो संकल्पतनीयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सार नैद्रवत्रयार्षे प्रदानित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेर्तां दास्यां विष्णुवेतुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया तालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सर्वदेवताः
इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलावतीः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு புஷ்பங்களால் அக்ஷதை மற்றும் திருத்துழாயால் பூஜை செய்வது விசேஷம். திருத்துழாய் என்றால் நமக்கு நினைவிற்கு வருவது ஆண்டாளுடைய பிறப்பு. அதாவது அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே திருத்துழாய் வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்ட அவளுக்கு இன்று பிறந்த நாள். ஆடிப்பூரம், திருவாடிப்பூரம் என்று கூறுவார்கள். விசேஷமான இந்த நன்னாள் மகாவிஷ்ணுவிற்கு பிரீத்திகரமான நாள். அந்த ஆண்டாள் கூறுவாளாம், மனம் புரிய மானிடரை மனதாலும் நினைக்க மாட்டேன் என்றாளாம். எதற்கு என்றால் எப்பொழுதும் கூட அந்த வடபத்ரசாயி என்னும் ரங்கமன்னாரைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வதாக கனவும் காணுகிறாள். அப்படிப்பட்டவள் மானிடரை எதற்காக நினைப்பாள்? பெரியாழ்வார் திருப்பல்லாண்டின் சாரமான விஷயத்தை வல்லப தேவ பாண்டியனுக்கு உபதேசித்து விட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு புறப்பட்டாராம். பொற்கிழியில் உள்ள பெரும் பணத்தை கொண்டு வடபெருங்கோவில் உடையானுக்கு திருப்பணிகளை செய்வித்தார். தான் ஏற்கனவே செய்து வந்த திரு நந்தவன கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து செய்பவராக தினமும் எம்பெருமானுக்கு மாலை கட்டி சமர்ப்பித்து வந்தாராம். அந்த சமயத்திலே கிருஷ்ணாவதார விஷயங்கள் முழுவதையும் பெரியாழ்வார் திருமொழிகளாக பாடி பரவசப்பட்டார். அதிலும் கிருஷ்ணனின் வினோத விளையாட்டுகளை யசோதையின் பாவனையில் ஒன்று விடாமல் தனக்குள் அனுபவித்தார். இவ்வாறு பிரபந்தங்களை வெளியிட்டு தானே பாடி மகிழ்ந்த பெரியாழ்வார் மதுரைக்கு அருகிலேயுள்ள திருமாலிருஞ்சோலை என்ற திவ்ய தேசத்தை அடைந்து அங்கிருந்தே பெருமாளின் திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளினாராம். அந்த சமயத்திலே பெரியாழ்வாரும் ஆண்டாளும் வாழ்ந்த ஊராகிய ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை தற்சமயம் திருவில்லிபுத்தூர் என வழங்கி வருகின்றார்கள். தாயாரின் ஸ்ரீ என்ற தாயாரின் பெயராய் அவள் உறைவிடமாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே விளங்குகிறது. ஒருவர் பெயருக்கு முன்னால் மரியாதை குறியீடாக திரு சேர்த்து கொள்ளுவது போல அல்ல இது. ஸ்ரீ என்ற மகாலட்சுமி உறையும் இடம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். தமிழிலே திருமகள் என்றால் மகாலட்சுமி தான். அப்படியானால் திருமகள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்று சொல்வதுதானே பொருத்தமாக இருக்கும் என்று. ஆனால் அதனால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை திருவில்லிபுத்தூர் என்று சொல்வது சரியல்ல என்கிறார்கள். அப்படி தபஸ்விகளும் பிராமணர்களும் நிறைந்த ஊராகிய ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சோலைகளால் சூழ்ந்திருக்கின்ற அந்த வண்டுகள் பூக்களை மொய்த்தது தேனை உறிஞ்சிய களிப்பின் மிகுதியால் ஹரி என்ற திருநாமத்தையே ரீங்காரம் செய்து கொண்டு உல்லாசமாய் பறந்து கொண்டிருக்கின்றனவாம். அப்படிப்பட்ட இடத்திலே திருத்துழாய் வனத்தை அமைத்து அதிலே அந்த திருத்துழாயை பறித்து கொண்டு வந்து மாலையாக தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து வரும் பெரியாழ்வாருக்கு ஒரு நாள் திடீர் என்று அந்த திருத்துழாய் வனத்திலே பெண் குழந்தை ஓசை கேட்டதாம். சென்று பார்க்கையிலே ஒரு அழகான லக்ஷ்மி, கலையான மகாலட்சுமியின் அம்சமாக அந்த குழந்தை கண்டெடுக்கப்பட்டது. அப்படி கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த பெண் குழந்தைக்கு கோதா என்றும் ஆண்டாள் என்றும் பெயரிட்டு செல்லமாக அழைத்து வந்தார். அவள் தான் ஆண்டாளானால் ஆடிப்பூரத்திலே அவதரித்தவள். இன்று அவளுக்கு ஜென்ம நட்சத்திரத்தை பட்டு அந்த ஆண்டாளுடைய திருநக்ஷத்திரமாக ஆடிப்புறத்திலேதான் அவள் அவதரித்தாள் என்று அந்த நாடு மட்டும் வைஷ்ணவர்களால் கொண்டாடப்படும் தலம்தான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். அப்படி அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஆண்டாளைத்தான் நாம் இப்பொழுது இன்று நினைத்து ஸ்மரணை செய்து வருகிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே மகாலட்சுமியின் அம்சமாக எழுந்தவளை நினைவு கூர்ந்தோம். இதோ
திருமலை அப்பனுக்கு கூட அவள் மாலைகளை சமர்ப்பித்தாள். அப்படி திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மனம் புரிவதற்காக மானிடரை யாரும் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாள் என்று எதற்கு கூறினாள் என்றால், அவள் மகாலட்சுமியின் அம்சம். மகாவிஷ்ணுவை தவிர வேறு யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டாள். அப்படி இருக்கையில் மானிடரை எப்படி திருமணம் செய்து கொள்வாள்? அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிய ஆண்டாள்தான் மகாலட்சுமியின் அம்சமாக இதோ இங்கே பூமி பிராட்டியாக எழுந்தருளி இருக்கிறாள். அந்த நாச்சிமார்களையும் சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா வைகுந்தவாசா, வெங்கடரமணா கோவிந்தா 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 என்று சேவிக்கலாம் அந்த மலையப்பனை. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே. விசேஷமான இந்த ஆடி மாதத்திலே 22வது நாள் புதன்கிழமை மகாவிஷ்ணுவிற்கு மிகவும் பிரீத்திகரமான நாள். அந்த மகாவிஷ்ணு அவருக்கும் விசேஷமான நாளை கொண்டாடி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாளையும் சற்று நினைத்து பார்த்து இந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே கூறத் தோன்றியது. பக்தர்களே, அந்த அகிலாண்ட கோட்டை பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு சஹஸ்ர நாமங்களை கூறிக்கொண்டு சேவிக்கலாம் அந்த பக்தவச்சலனை. 7 மலைகளிலே தனதாக்கிக் கொண்டு பக்தர்களை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதோ அந்த பூஜை முடிந்து அடுத்ததாக மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா. अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधोरिमागं समेतवत्सदां सौभाग्यमत्वै तत्त्वायादास्तं विपरेदनां श्रिये जातश्रियानिर्याय श्रियम्बयो चरिद्भ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां भद्रौ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधोरिमागं समेतवस्यदा सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतना मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यादुरा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु वेलयुनी कल्याण वेदिका कल्याण वेदिका मतिं
జౌవనపు యాగము చేసినతడు इमं मे वर्णस्देवद्वारिमृडया त्वां वसुराजगे स्वाहा तत्त्वायं ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः स्तेजमानोर्भिः अहेडमानवर्णे हवोदर्हिं समान आयः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य डवया श्रेष्ठाः यजिष्ठो वनितमसो जान विश्वाद्वेषां च प्रमुत्य स्वाहा अत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेदस्यावसो व्यष्टौ अवयक्ष्णवर्णं विहिमृडीकं सोहनेदि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमोषेयानो देवे जग्स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अजय नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवदेवताप्रासावीः ओं भूतिविरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये अजय नमस्वा हनुमते नमस्वा सरस्ते नमस्वा देवदेवताप्रसवा इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यववृदे अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्थिरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोरोजेनागमृषेणोत्तर्जन्नस्य पुष्पेण दस्तामृतागम् अणु विश्वावदत्तया व्यम्धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यववृदे अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्थिरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोरोहितेनागमृषेणोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागम् अणु विश्वावदत्तया व्यम्धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यववृदे अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्थिरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोरोहितेनागमृषेणोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागम् अणु विश्वावदत्तया व्यम्धारावदन्यायव अधिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा दैनमगस्थाः नुदैनमगस्थाः दैनमगस्थाः देवदेवताप्रासावीः ओं भूतिविरक्तष्टायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सर्वप्रायश्चार्थमतो देवादिवैष्णवं होष्ये दैनमनस्वा नुदैनमनस्वा सरस्तेनमनस्वा देवदेवताप्रसवा अतो देवावन्तनो विष्णुचक्रमे दिव्यास्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समो नमस्वां त्रये स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपाराभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तृतः वरदानसेन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिव्यचक्षुरादिग स्वाहा तद्यप्रासनिवाड्याध्रवं दशुन्ते विष्णोरत्रं बलग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा दैनमगस्थाः नुदैनमगस्थाः दैनमगस्थाः देवदेवताप्रासावीः ओं भूतिविरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः कर्मसाफल्यं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेनमनस्वा नुदैनमनस्वा सरस्तेनमनस्वा देवदेवताप्रसवा यदस्य करुणातीर्थमिद्यान्वेन महाकरम् अग्नेस्य सुष्टार्थं कुर्वतु स्वाहा अग्नेः सुष्टकृते स्वतः धावतेनां कामानां समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेः नाराय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रियावदे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो दुराभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादुष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा जन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्नराः जातवेदावचसे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनिन्द्रभस्मै पुनन्वेश्वाजं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा विशिष्टेभ्य स्वाहा भीषणदृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितम षट्कुटमत्योक्तञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणे क्षेणमग्नपर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा कदादेवान् स्वाहा तेजो में दे स्वाहा यमस्देव चर्म भाई स्वाहा सूर्य में चक्षु में भाई स्वाहा समझदे में चित्त में भाई स्वाहा वायुधि में प्राणन में भाई स्वाहा ब्रह्मणादि में बुद्धि में भाई स्वाहा
सप्तते अग्ने समित सप्तेफा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वान्ति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं बुद्धिर्भुक्तं वोषधं सुन्दरासे सेद्यनम् अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधोनस्पतिं दर्भासे जीर्णं स्वाहा समन्तां भवेशावतेन समादित्यैरुषविस्समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितसप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो हृदयस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिपन्ताम् ओषधस्त्रिपन्ताम् देहविदप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा क्षमक्षतेजो मे क्षमा मे दक्षिणता विष्णुसर्वसि पश्चिमता विष्णुसर्वसि प्राच्यां विष्णुसर्वसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छदतानुरष्टमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवानाहान् त्र्यायुषं तन्मे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्तसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभवस्थानवोर्जेदादना महेरणाय शिक्ष्ये योपश्वतमरुदस्तस्य भार्यतेन वृषदीर्यो मात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः प्रत्येज्ञेते दस्तीनाहं देवस्य भूयासं प्रत्येज्ञेवर्तस्तीनाहं वर्तस्य भूयासं प्रत्येज्ञे हरस्तीनाहं हरस्य भूयासं मयि मेधां मे प्रजां मे यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मे प्रजां मे इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मे प्रजां मे सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे यवदगान् मातोर्नवाः दुभ्राजमानस्थिरस्य समावृषभो रोहिदाक्षसूर्यो प्रसन्मनसा पुनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञोपदे नमश्च यत्येह ननं तस्मै दवित्तेन तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सतीनम्बा पुष्पैनम्बा होत्रैनम्बा रक्तार्भाग्ने जातवे स्वयं भगवान् प्रज्वलितो नमः करोम्यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदास्थानं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आद्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छामि सर्वं श्रीभुवनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவு நிறுத்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று கதிர் ஒளி தீபம் கவசம் உடன் ஏந்தி சதிர் இளம் மங்கையர் தாம் வந்து எதிர்கொள்ள மதுரையார் மன்னன் அடிநிலை தொட்டு எங்கும் மதுர புகுத கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் காண இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிருக்கும் ஆண்டாளானவள் தினந்தோறும் வட்டபத்திரசாயிக்கு மாலைகளை சமர்ப்பிப்பாள்.
அதேபோல் இங்கே அந்த திருமலை அப்பனுக்கும் மாலைகள் சமர்ப்பித்துள்ளால் அந்த மாலைகளைத்தான் இப்பொழுது பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. பாமாலையுடன் பூமாலையையும் சூடினவள் ஆண்டாள். தான் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்ற பெயர் பெற்றவளும் ஆண்டாள் தான், பூமி பிராட்டியின் அம்சமாக. அவள் அனுப்பிய மாலை பகவானுடைய திருக்கழுத்திலிருந்து ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு மீண்டும் பகவானுடைய திருக்கழுத்தை அலங்கரிக்குமாறு அனுப்புகிறார். அர்ச்சக சுவாமி அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பெருமாளுடைய திருக்கழுத்திலே அணிவிக்கிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த வேங்கடவன் திரும்பவும் மாலையை பூமி பிராட்டியின் அம்சமான மகாலட்சுமியின் அம்சமான ஆண்டாளுக்கு அனுப்புகிறார். ஆண்டாளுக்கு சூடுகிறார்கள் அந்த மாலை, அதாவது பூமி பிராட்டிக்கு தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பூமி பிராட்டி ஏற்கனவே தான் சூடி களைந்து கொடுத்த மாலைகள் அவை. அந்த மாலையை மீண்டும் கொண்டு சென்று பகவான் திருவேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கிறார்கள். திருவேங்கடவன் அந்த மாலையை ஸ்வீகரிக்கிறார். இதோ இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்தி ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே மூவரையும் அமரச் செய்கிறார்கள். அதை தொடர்ந்து அக்ஷதாரோப்பணம் என்னும் தலம்பிராலு கைங்கரியம். பக்தர்களே, தாயார்களுடன் எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெற சேவித்துக் கொள்ளலாம். அக்ஷதாரோப்பணத்தை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம் நடைபெற உள்ளது. லக்ஷ்மி ரமண தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.